Welcome learners in this course of computer fundamentals. In previous lecture we have seen third generation computers, what are their characteristics, what are the disadvantages. In this lecture we will study fourth generation computers which came being from 1975 to 1989. In fourth generation computer, average number of electronic components packed on a silicon chip doubled each year after 1965. This progress soon led to the era of large-scale integration (LSI), when it was possible to integrate over 30,000 electronic components on a single chip, followed by very large-scale integration (VLSI), when it was possible to integrate about 1 million electronic components on a single chip. This progress led to a dramatic development, creation of a microprocessor. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने देखी कि एक चिप बनाई गई जिसमें 10 to 20 कंपोनेंट्स थे और इस टेक्नोलॉजी का नाम हमने दिया था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। आफ्टर दैट हमने देखा और एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई जिसका नाम था MSI। उसमें कंपोनेंट्स फ्रॉम 10 to 100 इंटीग्रेट किए गए थे एक चिप में। उसके बाद 1965 में चिप में जो कंपोनेंट्स थे वो डबल किए गए आफ्टर ईच एंड एवरी ईयर। ये प्रोग्रेस चलता गया और उसके बाद और एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई थी जिसका नाम था LSI, जिसमें ये पॉसिबल था कि ओवर 30,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम एक चिप में इंटीग्रेट कर सकते थे। उसी के साथ साथ और एक टेक्नोलॉजी फिर इन्वेंट की गई थी जिसका नाम था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें एक चिप के अंदर ओवर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंटीग्रेट किए गए। ये प्रोग्रेस चलता गया और एक ड्रामेटिक डेवलपमेंट हुई जिससे एक माइक्रो प्रोसेसर क्रिएट किया गया। Microprocessor contains all circuits need to perform arithmetic logic and control functions, the core activities of all computer on a single chip. माइक्रोप्रोसेसर में वो तमाम सर्किट्स थे जिससे कोई भी परफॉर्म एक्टिविटी जैसे अर्थमेटिक में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करनी हो, कोई भी फंक्शन, कोई भी कंट्रोल फंक्शन करनी हो, या कोर एक्टिविटी जो भी मेन एक्टिविटी कंप्यूटर की होती थी वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोप्रोसेसर की जा सकती थी। Hence, it became possible to build a computer with a microprocessor, a few additional primary storage chips and other support circuitry. ये पॉसिबल हुआ कि एक कंप्लीट कंप्यूटर को बनाया गया विद द हेल्प ऑफ व्हाट माइक्रोप्रोसेसर। इसके अलावा कुछ प्राइमरी स्टोरेज चिप्स थी। It started a new social revolution, personal computer revolution. Overnight computer become incredibly compact. They become inexpensive to make a sudden. It became possible for many to own a computer. माइक्रोप्रोसेसर के रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर बनाए गए जिससे ये हुआ कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर अपना कंप्यूटर खरीद सके या अपना पर्सनल कंप्यूटर रख सके। By 1978, Apple from Apple Computer Inc. and the TRS-80 model from the Radio Shack division of Tandy Corporation were dominant personal computers. 1978 में Apple और TRS-80 दो मॉडल पर्सनल कंप्यूटर के बनाए गए। By 1980, IBM realized that personal computer market was too promising to ignore and came out with its own PC in 1981, popularly known as IBM PC. 1980 में IBM को ये चीज़ रियलाइज हुई कि मार्केट में पर्सनल कंप्यूटर की बूम है। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने वो एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया 1980 में जिसका नाम था IBM PC. Several other manufacturers used IBM specification and designed their own PCs, popularly known as IBM Countable PC और Colonus. इसके अलावा और कुछ डिवाइसेस बनाए गए जिनमें एक का नाम IBM Compatible PC और उनको Colonus कहते थे। The IBM PC and its Colonus became popular standard for the PC industry during the fourth generation. During fourth generation, semiconductor memories replaced magnetic cores memory, resulting in large random access memory with very fast access time. Hard disks become cheaper, smaller and larger in capacity. In addition to magnetic tapes, floppy disks become popular as a portable medium for porting programs and data from one computer system to another. Significant advancement also took place during fourth generation in the area of large scale computer systems. हार्ड डिस्क चीप बन गई, उनका जो साइज वो बहुत ही कम था लेकिन उनकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। आजकल अगर हम देखें हार्ड डिस्क जो होती है वो
वन टीबी होती है तो वो हमारे पॉकेट में रहती है। लेकिन आज से पहले अगर हम देखें, जो पहले पहले हार्ड डिस्क थी उनका जो साइज था वो एक रूम में होता था, एक टीबी मेमोरी एक रूम में, एक कमरे में होती थी। In addition to improved processing and storage capabilities of mainframe system, the fourth generation saw the advent of supercomputers based on parallel vector processing and symmetric multiprocessing technologies. A supercomputer based on a parallel vector processing technology contains a small number of custom designed vector processors which are connected to a number of high-speed data access shared memory modules through a custom designed high bandwidth crossbar switch network. सुपर कंप्यूटर वजूद में आए जिससे जो भी हमारा काम था वो पैरेलली होने लगा, और जो हमारा टाइम था और जो काम था वो बहुत ही फास्ट हुआ। सुपर कंप्यूटर उस चीज काम के लिए लगते हैं जब हमारे पास कोई बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन हमारे पास जो टाइम वो बहुत कम होता है और एक्सेस बहुत ही ज्यादा होता है। Local area networks become popular for connecting computers within an organization or within a campus. Similarly, wide area network become popular for connecting computers located at larger distances. This gave rise to the network of computers and distributed systems. LAN और WAN इन्वेंट की गई थी, जिससे क्या हुआ कि लैन लैन का काम क्या है, लैन का काम है विद इन कैंपस और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना, एक नेटवर्क बनाना फॉर डेटा शेयरिंग और फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। इसी अलावा वाइड एरिया नेटवर्क वैन का काम ये होता है कि लार्जर डिस्टेंस पे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना for the same purpose. On software front, several new development emerged to the match of new technologies of fourth generation. For example, vendors developed several new operating systems for PCs. Notable ones among these were MS-DOS, MS Windows, and Apple's property Mac OS. Since PCs were more individually who are not computer professionals, companies developed graphical user interface for making computers more user-friendly. A graphical GUI provides icons, menus that users select with a mouse. PC manufacturers and application software developers develop several new PCs based to make PC a powerful tool. ड्यूरिंग फोर्थ जनरेशन क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, न्यू न्यू सॉफ्टवेयर इमर्ज किए गए जैसे कि एम एस डॉस, एम एस विंडोज और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम आजकल यूज करते हैं। इसके अलावा GUI इन्वेंट किया गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इससे क्या हुआ कि जो यूजर्स थे उनको कंप्यूटर चलाना या कंप्यूटर इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हुआ। विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ आइकन्स, विद द हेल्प ऑफ मेन्यू। मेन्यू में क्या होता था, लिस्ट आता था, लिस्ट ऑफ चॉइसेस, यूजर सिलेक्ट क्या करना चाहता था। इसके अलावा क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने न्यू न्यू सॉफ्टवेयर बनाए, न्यू न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाए। इससे हमारा जो पीसी है वो एक पावरफुल टूल बन गया। Notable among these were popular word processing package that allowed easy development of document, a spreadsheet package that allows easy manipulation and analysis of data organized in columns and rows, and graphic package that allow drawing of pictures and diagrams. Another very useful concept that became popular during fourth generation was that of multiple window on a single terminal screen. This feature allowed users to see the states of several applications simultaneously in separate windows on same terminal screen. In the area of software for large-scale computers, key technologies that become popular include multiprocessing operating systems and concurrent programming languages. इसके बाद क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिससे क्या हुआ कि हमें इजीली कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, स्प्रेडशीट बनाना हो या कोई भी काम जैसे कि स्प्रेडशीट बनाना हो, किसी डेटा का एनालिसिस करना हो रोज में, कॉलम्स में। इसके अलावा क्या हुआ कि ड्यूरिंग फोर्थ जनरेशन मल्टीपल विंडोज इन्वेंट की गई, जिससे क्या हुआ कि एक ही स्क्रीन में बहुत सारे काम एट अ टाइम देखे जाते थे। फॉर एग्जांपल, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वो स्क्रीन भी देख पाता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ वो भी देख रहा हूँ, इसके अलावा मेरा ब्राउजर चल रहा है, इसके अलावा मेरा एडिटर चल रहा है। हर एक जो भी मेरा सॉफ्टवेयर वो एट अ टाइम चल रहा है, और वो भी एक ही विंडो में। मैं एट अ टाइम हर कोई विंडो देख सकता हूँ कि कहाँ पे कौन सा प्रोग्रेस चल रहा है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टर फीचर्स ऑफ fourth generation computers? PCs were smaller and cheaper than mainframe or mini computer of third generation. जो पीसीज थे वो बहुत ही सुमाल थे, चीपर थे। किससे? मेन फ्रेम जो या मिनी कंप्यूटर, जो थर्ड जनरेशन में मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम थे उससे वो चीपर भी थे और स्मॉलर भी थे। इसके अलावा जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि जो पीसीज थे उनमें एयर कंडीशनर रूम्स नहीं
जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, उनमें हमें एयर कंडीशन जो रूम्स या एरिया जहाँ पे हमारा कंप्यूटर होता था वो रखने पड़ते थे। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वो पावर बहुत ही कम इस्तेमाल करते थे देन थर्ड जनरेशन। इसके अलावा जो पीसी थे वो बहुत ही रिलेबल थे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर हमें कंप्यूटर लेने वो आसानी होती थी। या हार्डवेयर फेलियर हमने जो देखा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में, वो यहाँ पे बहुत ही कम पाया जाता था। इसके अलावा इनकी जो मेमोरी थी वो बहुत ही फास्ट थी, और इनका जो पर्पस था वो जनरल पर्पस था, ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाया गया था, ये जनरल पर्पस के लिए बनाया गया था। यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउड प्रोग्राम्स written from one computer to be easily ported to and execute on another computer। इसके अलावा क्या हुआ था कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये अलो करा था प्रोग्रामर्स को कि हम एक कंप्यूटर पे अगर प्रोग्रामिंग करें तो हम इजीली दूसरे सिस्टम में भी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते थे। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन में ये भी हुआ कि जीयूआई का इन्वेंट किया गया, जिससे यूजर्स को आसान हुआ कंप्यूटर चलाना। पर्सनल कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशंस जो बनाएगी उससे हमारा काम आसान हुआ, चाहे हमें घर पे इस्तेमाल करना हो या ऑफिस में। इसके अलावा जो हमने लैन और वैन का जिक्र किया, नेटवर्किंग से हमारा काम इसके अलावा आसान हुआ। क्या हुआ कि अगर हमें कोई भी कम्युनिकेशन करनी हो या कोई शेयरिंग डेटा कोई भी शेयर करना हो विद मल्टीपल कंप्यूटर, मल्टीपल वो कितने भी दूर क्यों ना हो, या आपस में कैंपस में क्यों ना हो, विद इन कैंपस और वाइडर रेंज क्यों ना हो, तो वो भी मुमकिन हुआ ड्यूरिंग फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल अगर चाहता कि मैं अपने लिए पर्सनल कंप्यूटर खरीद सकूं फिर वो यूज करूं, तो वो भी पॉसिबल हुआ ड्यूरिंग फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में इन्वेंट किए गए, जिससे ये हुआ कि पैरेलल प्रोसेसिंग हुई, जिससे अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ कोई भी काम हो तो वो क्या हुआ था, वो इजीली हो पाता था। सुपर कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में एनेबल हुए, जिससे क्या हुआ कि पैरेलल प्रोसेसिंग होती थी, कोई भी लार्ज वर्क होता था वो इजीली विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर होता था। इससे हमारा क्या हुआ कि जो भी टाइम था वो बहुत ही कंज्यूम हुआ, मच फास्टर देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। This is all about fourth generation computers. Now there is one question for you. You have to answer this question on comment box. VLSI full forum. Thank you. If you have any query related lecture, related course or anything else related YouTube channel, please feel free to comment below.